वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. I have been completed most of the topic related with the public finance. There are only very few topic which is being lapped. और इंटरनेशनल के भी मैक्सिमम टॉपिक्स हो चुके हैं. उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रह गया था. दैट इज द ओनली रीजन आई हैव पिक्ड इट आउट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टॉपिक. तो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन तो सेशन को स्टार्ट किया जा सके. जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. Very important topic. At least 2-3 questions will be come from this topic for all three streams. ना केवल इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, इवन मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, इन ऑल थ्री स्ट्रीम्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन. तो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन. जल्दी सब लोग स्टार्ट करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. We are starting the class within the 1 minute. So once again, good evening everyone. Today we are starting a topic that is all about the foreign exchange market. We have been already completed the international business topic except the foreign exchange. So today we'll try to complete the whole foreign exchange market. And in the public finance we have been completed most of the important topic. Still there are very few topic, approx 2 topics is being lapped. So probably by the next week we will be able to complete there are 2 units of UGC net in economics, unit number public finance and international economics. After that we will be starting the Indian economy or growth and development depending on your request. और मैनेजमेंट कॉमर्स का बैच 8 बजे रेगुलर चल रहा है. उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसमें आईबी हो चुका है और 8 बजे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट स्टार्ट किया है. तो टुडेज टॉपिक फॉर presentation that is called foreign exchange market. So what is all about the foreign exchange market? जैसे कि नॉर्मली हम लोग बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, हम शॉर्ट फॉर्म में पूरे अगले नेक्स्ट 45 मिनट 40 मिनट जितनी देर लेक्चर होगा वी विल यूज एज एन एब्रिविएशन दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स. तो व्हाट इज ऑल अबाउट द फॉरेक्स? जैसे कि हम लोग को पता है कि whenever we are doing any international businesses and if we are moving from one country to the other respective country, then what we are requiring certain foreign exchange. Without the foreign exchange we will not be able to do any trade in our respective country. So आज के टाइम में या कभी भी whenever we are making any transactions with the US or Japan or China, then what we are requiring, we have to be convert our respective currency with their respective currency. ठीक है, उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं. जिस रेट पर, हिंदी में बता रहे हैं, जिस रेट पर एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ चेंज करते हैं, द ट्रेड इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. in which rate we are exchanging the one country's currencies with reference to the relative currency or respective currency. That rate is called foreign exchange rate. तो हम आपको बताते हैं कि जैसे नॉर्मली है कि इंडिया में भी हैव अ डिफरेंट अथॉरिटीज, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज भी हैव. ठीक है, तो इन इंडिया भी जैसे कि आपको पता है कि फॉर द स्टॉक मार्केट
we have a Security Exchange Board of India, that is called SEBI, BSE and NSE. For bankings, we have a RBI. For small scale industries, we have a SIDBI. For agriculture and rural development, we have a NABARD. So और ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी have a Exim Bank. So we have a different markets are available in the market. So we have a different regulatory authority which is actually managing the entire economic system of the country. And in the same time, we have a foreign exchange market. So sometimes UGC might ask the questions, who is the regulator of foreign exchange market? So in India, central bank of the country. Who is the central bank of the country? That is called Reserve Bank of India. So RBI is the regulator of foreign exchange market. After this lecture, you will be able to understand what is all about the foreign exchange market, how the foreign exchange market has traded, what is the direct trade, what is the cross rate, what is the dollarization, what is the fixed exchange rate, and what is the flexible exchange rate. It is going to be very interesting topic today, and you are going to get certain very new things. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे काम करती है भी. नॉर्मली दो टाइप की मार्केट होती है इसमें, एक स्पॉट मार्केट होता है, दूसरा फॉरवर्ड मार्केट होता है. स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट. So what is this meaning of spot market? Buying and selling the securities against the buying and selling the securities against the payment. मतलब कि सेम डे डिलीवरी होता है इसमें. इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉट मार्केट, जैसे नगद मार्केट. जैसे हम लोग मार्केट में दुकान में सामान लेने जाते हैं, एक हाथ से पैसा दिया, एक हाथ से आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी हुआ. तो स्पॉट मार्केट इज ऑल अबाउट सेम डे डिलीवरी ऑन ट्रेडेड डेट. जिस डेट पे आप सामान खरीदेंगे उसी डेट पे आपको मिलेगा. फॉरवर्ड मार्केट की बात करते हैं. फॉरवर्ड मार्केट में नॉट ए डिलीवरी डेट, नॉट ए डिलीवरी डेट के मतलब नहीं है. दिस डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर, इज डिपेंड ऑन द फ्यूचर रेट्स. एंड फॉरवर्ड मार्केट्स आर डिपेंडिंग ऑन premium rate on discounted rates. So buying and selling the securities and buying and selling the currency against the payment, that is called spot market. तो मतलब आज ही आप करेंसी खरीद रहे हो, आज ही आपको पेमेंट करना है किसी चीज का. तो सेम डे whatever the prevailing rate of the respective currency, that much amount you have to be paid. But in terms of the forward market, what actually you have to be paid, there will not be delivery date. It's totally prices is totally depending on the future rate. The forward market can be on the basis of premium and it can be basis of discount. अगर आपकी करेंसी, जैसे नॉर्मली आपको पता होगा, एक होता है करेंसी अप्रिसिएशन, एक होता है करेंसी डेप्रिसिएशन. जैसे $1 इक्वल टू मान लीजिए 100 रुपए है. अगर ये 110 रुपए हो गया या 190 हो गया, तो अगर इंडिया की बात करेंगे, अगर $1 इक्वल टू 110 रुपीज हो जाता है, तो इंडियन करेंसी गॉट डेप्रिसिएटेड. If $1 is equal to 90 rupees, that means Indian currency got appreciated. सीधी सी बात है, अगर हम लोग फ्यूचर की रेट होगा, फ्यूचर की डेट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है बहुत फ्रिक्वेंट में करेंसीज की वैल्यू माइट हैव सर्टेन चेंजेस. दैट इज द ओनली रीजन वी डू कॉल एज ए कि फॉरवर्ड मार्केट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम रेट और डिस्काउंटेड रेट. क्लियर. आगे हम लोग बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन होता है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट्स. तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है. नॉन बैंकिंग एंटिटीज. जहां पर भी आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज पूछ लेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. आई ट्राई टू टीच यू इन अ वेरी सिंपल मैनर. Still you are feeling any doubt, you are not getting any point what I am just saying to you, so you may ask any questions to me. So non-banking entity, banking entity and foreign exchange या forex broker. कौन कौन पार्टिसिपेंट का मतलब है, who are the person who are actually involving in a foreign exchange market. पहले हम इसमें हमने बात किया नॉन बैंकिंग एंटिटी. नॉन बैंकिंग होंगे इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स. आपको पता ही, अगर कोई बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे, यू डू रिक्वायर द फॉरेन एक्सचेंज. इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स. थर्ड हो गया हमारा, सेकंड हो गया हमारा इन्वेस्टर्स एंड एमएनसीज.
अगर if suppose that you just want to be make certain investment in a foreign currency, then what actually you have to do, you have to be convert your respective currency with the respective country wherever you just want to do certain investment. So firstly, क्योंकि आपके पास तो you should have your own respective currency, that is called whether it's a market, whether it's a European euro or US dollar or Japanese yen or Indian rupees. तो जिस कंट्री से बिलोंग करते होंगे उसी कंट्री का आपके पास एक रिस्पेक्टिव क्या होगा, करेंसी होगा. तो आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दुनिया के किसी देश में, व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली यू हैव टू बी कन्वर्ट योर करेंसी विद द रिस्पेक्टिव करेंसी. एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी पता ही है, तो दुनिया के आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके व्यापार करेंगे अपनी कंपनी के साथ, एमएनसी उसी को बोलते हैं ना, व्हेन द कंपनीज आर डीलिंग इन मोर देन वन कंट्री. तो एमएनसीज जब आएंगी बाहर से तो उनको भी रिस्पेक्टिव करेंसी चाहिए होगा. तो नॉन बैंकिंग एंटिटी में इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स एंड एमएनसीज. बैंकिंग्स में कमर्शियल बैंक, आपको पता है सारी बैंक के आजकल जितने भी कमर्शियल बैंक, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, दे हैव सम फॉरेक्स बैंकिंग. वो लोग भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं. आपको कहीं बाहर जाना है तो यू कैन कन्वर्ट योर ओन करेंसी विद द फॉरेन करेंसी, जो भी आपको चाहिए. और सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का काम केवल आरबीआई को रेगुलेट करना नहीं है. सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो बैंक्स ऑफ द बैंक, वो भी एक फुल फ्लेज बैंक ही है. They are also investing certain amount of the money in a foreign exchange market for certain to gain certain profit. So central bank और commercial bank also participate. Foreign exchange broker कौन था? Broker तो आपको पता ही है कि they are playing the role of intermediaries. Role of intermediaries. तो ब्रोकर जो होते हैं, ब्रोकर क्या करते हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन हो गया, जो करेंसीज को आपसे पैसा लेंगे फिर आपको सर्टेन करेंसीज देंगे. तो फॉरेन एक्सचेंज जो ब्रोकर्स होते हैं, so they are playing the role of the mediator between the certain things. ठीक है, इसको बोलते हैं who are the participant. तो बैंकिंग, अपना नॉन बैंकिंग एंटिटीज आई हैव बीन टोल्ड यू, बैंकिंग और फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर. आगे बात करते हैं इसमें हम लोग the concept of exchange rate. The concept of exchange rate. Exchange rate का concept क्या होता है? The concept of exchange rate. तो वे ऑफ द कोटिंग रेट दो टाइप के होते हैं. कैसे हम लोग कोट करते हैं रेट, वे ऑफ कोटिंग रेट. तो इसमें होता है एक डायरेक्ट कोट होता है, डायरेक्ट कोट. विशाखा मैम, यूज, अनामिका, सौम्या, सीमा मैम, आप कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ जरूर लीजिएगा. इनडायरेक्ट कोट, एक होता है डायरेक्ट कोट, एक होता है इनडायरेक्ट कोट. सिंपल सी बात, अगर $1 इज इक्वल टू 100 रुपए की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोट. और ₹1 इज इक्वल टू कितना डायरेक्टर, तो क्या होगा, 1 रुपीज 1 INR इज इक्वल टू कितना, $1 ठीक है, क्लियर. कितना आपका डॉलर हो रहा है हमारा, क्लियर. तो सीधी सी बात, अगर $1 इज इक्वल टू 100 रुपए है तो ₹1 में कितना डॉलर हुआ, तो कितना हुआ, 0.0001, ठीक है. तो $1 में कितना रुपए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोट. एंड ₹1 में हाउ मच डॉलर वी विल गेट, उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट कोट. ठीक है, ₹1 इज इक्वल टू कितना डॉलर होगा, 1 अपॉन जितना भी डॉलर की वैल्यू है 100 रुपए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.01 आएगा. ठीक है. तो डायरेक्ट कोट होता है कि डायरेक्टली हम लोग कन्वर्टिंग करें. इनडायरेक्ट कोट में कि वी आर कन्वर्टिंग अवर करेंसी विद द रिस्पेक्टिव करेंसी. तो $1 इक्वल टू, सिंपल याद रखिए, $1 इक्वल टू 100 रुपए, डायरेक्ट कोट. तो ₹1 में कितना डॉलर है, 0.01 हुआ, दैट इज कॉल्ड हमारा हुआ इनडायरेक्ट कोट. क्लियर, कोई डाउट पूछ लीजिएगा जहां पर कोई डाउट लगे. डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट में कोई डाउट बताइए. ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजीम. फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजीम. इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि डिटरमाइनिंग द कम, जो आज जो $1 इक्वल टू 72-73 रुपीज चल रहा है, डू यू हैव एवर थॉट कि $1 इक्वल टू 75 रुपए क्यों है, एक रुपए इक्वल टू $75 क्यों नहीं है. तो कैसे कंट्रीज की करेंसीज की वैल्यू फिक्स की जाती है, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ वी आर एक्सचेंजिंग या हाउ वी आर फिक्सिंग द कंट्रीज करेंसी विद रेफरेंस टू द अक्रॉस द
ग्लोब। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजीम में दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम, फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम, and other way that is called flexible exchange rate regime. So in a fixed we have a further three parts, and flexible we have a two parts. So in a flexible we have a free float, अभी सब बताएंगे आपको क्या होता है ये, unmanaged and managed float. In a fixed में further we have currency board system, currency board system is a one part. Another is a target zone arrangement, अभी पूरा लिखेंगे साफ साफ, target zone arrangement. And third is currency basket or currency pegging, currency pegging, currency basket. So a fixed exchange rate further divided in a three parts. So there are three ways to do fixed exchange rate regime. First is a currency board system, other is a target zone arrangement, third is a currency basket or currency pegging. In a further we will talk about the flexible exchange rate system. So we have two options to fix the currencies as per the flexible exchange rate system. First is free float, other is a managed float. तो अगर बात करेंगे व्हाट इज ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजीम, डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट इन द गिवन पीरियोडिक टाइम, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन अ फॉरेन मार्केट. हाउ एक्चुअली वी आर फिक्सिंग द कंट्रीज करेंसीज विद रेफरेंस टू द फॉरेन करेंसीज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजीम. किस तरीके से एक देश की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ वैल्यू को फिक्स करते हैं, उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजीम कहा जाता है. तो इसके मेरे पास दो ऑप्शन है, एक हो गया हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम, दूसरा हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम. इन फिक्स वी हैव ए करेंसी बोर्ड सिस्टम एंड वी हैव व्हाट वी कॉल, हमने आपको बताया टारगेट जोन अरेंजमेंट, दूसरा हमने बताया तीसरा बताया करेंसी बास्केट एंड करेंसी पैगिंग. कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा. और हमने आपको मैनेज फ्लोट में उसमें बताया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम में बताया वी हैव बीन फ्री फ्लोट एंड अदर साइड इज दैट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोट. तो वी आर स्टार्टिंग विद द, पहले हम लोग बात करेंगे फिक्स में, बात करेंगे करेंसी. सबसे टिपिकल जो है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो यही है करेंसी बोर्ड सिस्टम. व्हाट डू मीन बाय द करेंसी बोर्ड सिस्टम? हाउ द करेंसी बोर्ड सिस्टम प्लेज ए वाइटल रोल, हाउ द करेंसी बोर्ड सिस्टम plays the role to fixing the value of your respective currency with reference to the foreign currency. So what is the role and how actually they do work, किस तरीके से ये काम करते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंडर दिस सिस्टम country fix the rate of domestic currency against the foreign currency. इसका मतलब शायद समझ में आया नहीं है, हम भी बताएंगे आपको. फॉरेन करेंसी, अंडर दिस सिस्टम कंट्रीज फिक्स द रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी. अब कौन सी फॉरेन करेंसी? जिस कंट्री के साथ आप अपनी कंट्री की करेंसी को पहली बार फिक्स करते हैं, ठीक है, उसी के सिस्टम को हम करेंसी बोर्ड सिस्टम कहते हैं. और याद रखिए, जिस कंट्री की करेंसी के साथ पहली बार करेंसी की वैल्यू फिक्स करेंगे, उस करेंसी को कहते हैं एंकर्ड करेंसी और रेफरेंस करेंसी. एंकर्ड करेंसी और रेफरेंस करेंसी. बट मुद्दा ये आता है दिमाग में, हाउ विल यू पिक द वन दैट पर्टिकुलर करेंसी? आप एंकर्ड करेंसी, रेफरेंस करेंसी कौन सी पिक करेंगे? ठीक है, तो यहां तक की समझ में आ गया कि अंडर दिस सिस्टम कंट्री फिक्स द रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड करेंसी बोर्ड सिस्टम. इन विच करेंसी you are picking that particular currency and you are converting your currency with that particular currency. That currency is called anchored currency or reference currency. जिस कंट्री की करेंसी के साथ पहली बार आप रेट फिक्स करेंगे अपनी करेंसी को, उसको वी डू कॉल एंकर्ड करेंसी और रेफरेंस करेंसी. बट द क्वेश्चन रेजेस इन अवर माइंड, मुद्दा ये उठता है, हाउ विल यू पिक दैट एंकर्ड करेंसी? उसमें लिखिए, उसके आगे मेन मुद्दा ये है
कि ऐसी कंट्री की करेंसी के साथ हम पहली बार वैल्यू फिक्स करेंगे जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक सिस्टम आपके जैसा हो। तो द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ country in line with monetary policy of reference currency। सीधी सी बात, हम ऐसी करेंसी कोई अपना बेस मानेंगे जिसकी इकोनॉमी आपकी जैसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी जैसी। जैसे अगर साल में, जैसे भारत है, भारत भी साल में 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू कर रहा है। नॉट इवन द यूएस, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, दे आर डूइंग द सेम। they are reviewing their monetary policy 4 times in a year or 3 times in a year. So whatever the similarities we have between the currencies, we'll try to target those country, and we will picking those countries currencies, and accordingly we are converting our country's currency with respect to the foreign currency. The monetary policy of country in line with the monetary policy of reference country. उसके अलावा ये भी आपको इंश्योर करना है, ऑल्सो वी हैव टू बी इंश्योर अनरिस्ट्रिक्टेड कन्वर्जन। ऐसा नहीं कुछ रुकावटें लिखी हो, कुछ रुकावटें हो या कुछ सर्टेन ऑब्स्टिकल्स हो, ऐसी करेंसी के साथ हम लोग एक्सचेंज नहीं करेंगे। ऑल्सो वी हैव टू बी इंश्योर अनरिस्ट्रिक्टेड कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी into the anchor currency. So monetary policy of country in line with the monetary policy of reference country, and also ensure unrestricted conversion of domestic currency into the anchored currency. Clear? कोई पूछता है कि एंकर्ड करेंसी और रेफरेंस करेंसी क्या होता है? अब देखिए, यहां पर कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। एंकर्ड करेंसी और रेफरेंस करेंसी किसको कहते हैं? मुद्दा समझिए, जिस कंट्री की करेंसी के साथ अपनी करेंसी की वैल्यू को यू आर फिक्सिंग इन अ वेरी फर्स्ट टाइम, उस कंट्री की करेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या बोलेंगे? बीइंग इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड एंकर्ड करेंसी और रेफरेंस करेंसी। बट उस करेंसी को हम पिक कैसे करेंगे? किसके साथ अपनी करेंसी की पहली बार वैल्यू फिक्स करना है? ऑन द बेसिस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो बेसिक इकोनॉमिक फिनोमिना है, देयर शुड हैव सर्टेन सिमिलरिटी इन इकोनॉमी। On the basis of those characteristics of the economy, we are going to pick those respective countries currency। ठीक है, इसको बोलते हैं करेंसी बोर्ड सिस्टम। कोई डाउट है तो बताइए। अगला हो गया टारगेट जोन अरेंजमेंट। टारगेट जोन अरेंजमेंट, टारगेट जोन अरेंजमेंट क्या होता है बताइए? बताएंगे अभी। करेंसी बोर्ड सिस्टम में कोई डाउट है बताइए। विशाखा मैम आप, सौम्या, अनामिका, सीमा मैम आप, जिसको कोई डाउट है प्लीज बताइए। सेकेंड हो गया टारगेट जोन अरेंजमेंट। अब टारगेट जोन अरेंजमेंट क्या होता है? सीधी सी बात है कि टू कीप द एक्सचेंज रेट बिटवीन देयर करेंसीज विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ फिक्स सेंट्रल एक्सचेंज रेट। मतलब when the two or more than two country has started using the one common currency as a legal tender in their respective economy instead of their domestic currency, that is called target zone arrangement। जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक कॉमन करेंसी को फॉर्मुलेट करते हैं, and they have started using that common currency as a legal tender in the respective economy, that is called target जोन
अरेंजमेंट। इसका एग्जाम्पल है यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम। पूरे आपको पता होगा पूरे यूरोप में क्या चलता है, यूरो। ये हम लोग क्यों करते हैं, जब कोई हम लोग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम लोगों ने इकोनॉमिक यूनियन फॉर्म किया एंड व्हेन वी आर लुकिंग फॉर पैरेलल ग्रोथ अमंग ऑल द नेशंस whomsoever आर द मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक यूनियन। तो जब आपकी अक्रॉस द economic union and across the regional economic integration, if there will be only one common currency, so what will happen, there will be a पैरेलल ग्रोथ अमॉन्ग ऑल द नेशंस। समझ गए टारगेट जोन अरेंजमेंट? जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर दे स्टार्टेड यूजिंग द वन कॉमन करेंसी एज अ लीगल टेंडर इन द रिस्पेक्टिव इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज कॉल्ड टारगेट जोन अरेंजमेंट। एक मतलब अलग अलग ही करेंसी को यूज करना शुरू कर दिए। तो यूरोपियन यूनियन एग्जांपल याद रखिएगा, यूरो, अक्रॉस द यूरोप वी यूज द यूरो। Take it out. Without. अगला हो गया करेंसी बास्केट और करेंसी पैगिंग। करेंसी बास्केट और करेंसी पैगिंग। What is this meaning of currency basket and currency pegging? दिस इज करेंसी बास्केट एंड करेंसी पैगिंग का मतलब है, जब ये थोड़ा अलग है, इसमें क्या होता है, जब कुछ देश की करेंसी आपस में मिलकर एक नया करेंसी बना लेती हैं, उसको बोलते हैं करेंसी बास्केट। जैसे कि एसडीआर हमने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दौरान, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें मुद्दा क्या है बच्चा कि एसडीआर क्या है आपको पता है, दुनिया की 5 यूएस डॉलर और जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड, यूरोपियन यूरो, ठीक है, और चाइना में 2 करेंसी चलती, चाइनीज युआन और रेनेबी। तो इन पांचों देशों से 5 करेंसी के मिलकर एक नया करेंसी जब बना लेते हैं, उसमें देखिए जब सारे के सारे देश मिलकर एक करेंसी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर क्या होता है कि जब 2 4 5 देश आपस में अपनी करेंसीज को क्लब करके एक नया करेंसी बनाते हैं, उसको बोलते हैं करेंसी बास्केट और करेंसी पैगिंग। क्लियर है ना? विदाउट सरल ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये होता है क्या, फिक्स। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में हमारा है पहला फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होता है, हमने बताया था आपको, फ्री फ्लोट मतलब मार्केट के बेसिस पे, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिन करेंसी की मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, दोज करेंसी विल बी अप्रिशिएटेड एंड रिमेनिंग करेंसीज विल बी गॉट अप डेप्रिशिएटेड। तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, फ्री फ्लोट में होता है। और देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक of the country. तो फ्री फ्लोट में टोटली डिपेंडिंग ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिन करेंसीज की मार्केट में देयर इज अ ह्यूज डिमांड, दोज करेंसी विल बी गेट डेप्रिशिएटेड एंड रिमेनिंग करेंसी विल बी गॉट डेप्रिशिएटेड एंड देयर इज अ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है। अगला बात करते हैं मैनेज फ्लोट। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ मैनेज फ्लोट? यहां पर भी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होती है, बट अकेजनली, याद रखिएगा, अकेजनली इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट की बात करेंगे, सेंट्रल बैंक की बात नहीं करेंगे। तो कभी कभार मैनेज फ्लोट में सरकार उसमें इंटरवेंशन करती है। जैसे कि आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट डीवैल्यूएशन। जैसे आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन बोथ आर द सेम थिंग। दोनों में करेंसी क्या होती है, गॉट डेप्रिशिएटेड। द थिंग इज दैट डेप्रिसिएशन होता है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, बट इन द सेम टाइम when the government deliberately decrease the value of their respective currency, that is called devaluation in the nature. तो devaluation and depreciation please do clear, दिमाग क्लियर रखिएगा कि depreciation और devaluation दोनों चीजें सेम है, but devaluation when the government deliberately decrease the value of their respective currency, that is called devaluation. And when the due to the market forces if your currency got depreciated, that is called depreciation। बताइए। तो ये हो गया फ्री फ्लोट, ये हो गया मैनेज फ्लोट। हमने
उधर फिक्स में आपको करेंसी बोर्ड सिस्टम, टारगेट जनरल अरेंजमेंट एंड करेंसी बास्केट और करेंसी पैकिंग पूरा बता दिया। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो बताइए। इसमें कुछ 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 चीजें और हैं कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि एक होता है कैलकुलेटिंग द एक्सचेंज रेट। एक होता है इसमें बिड रेट होता है, आस्क प्राइस, या बिड प्राइस और आस्क प्राइस। बिड रेट और आस्क प्राइस, बिड होता है बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, आस्क होता है हमारा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल याद रखिए, दिस इज बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, वट एवर द बिडिंग यू आर, वट एवर द बिड यू आर कीपिंग, जो बिड लगा रहा है किसी भी चीज की, सेलर जो उस पर्टिकुलर करेंसी को खरीदने के लिए, करेंसी को बेचने के लिए जो पैसा मांग रहा है। तो आस्क इज एज पर द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, बिड इज एज पर द बायर पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी सिंपल। एक टर्मिनोलॉजी है क्रॉस रेट। क्रॉस रेट क्या होता है समझ लीजिए। जब क्या होता है कि जब दो, आप मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं कि भारत, इंडिया और दुबई, सपोज दैट, कि आपस में एज्यूम कर रहे हैं, जब आपस में दोनों देश ट्रेड कर रहे हैं, दोनों देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, बट इन दोनों देश के बीच में आपस में कोई एक्सचेंज रेट स्टेब्लिश नहीं है, बट इंडिया को दुबई के साथ ट्रेड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई टू एकोमुलेट थर्ड पार्टी, थर्ड कंट्री एज इंटरमीडिएट। फर्स्टली ऐसी कंट्री को देखेंगे जिसका एक्सचेंज रेट दोनों के साथ अवेलेबल है। उसमें क्या करेंगे, पहले इंडिया अपनी करेंसी की वैल्यू उसके साथ फिक्स कर एक्सचेंज करेगी, और फिर वो करेंसी की, उसी कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंगली हम दुबई को पेमेंट कर देंगे। सिंपल समझिए, जैसे इंडिया और दुबई की बात करें कि इंडिया को दुबई को पेमेंट करना है, यहां पर बीच में हमने मान लीजिए यूएस डॉलर ले लिया हमने। इंडिया का एक्सचेंज रेट डॉलर के साथ है और दुबई का एक्सचेंज रेट भी डॉलर के साथ है। मान लीजिए कि $1 इक्वल टू 100 रुपए है। अगर $1 हम लोग खरीदते हैं तो हमको 100 रुपए देना पड़ता है। और एक दुबई में क्या चलता है, दिरहम। एक दिरहम इज इक्वल टू मान लीजिए 5, सॉरी, एक एक डॉलर इज इक्वल टू 5 दिरहम है। मतलब $1 इज इक्वल टू 100 रुपए और एक दिरहम इज इक्वल टू 5, $1 इक्वल टू 5 दिरहम है। तो आपको अब नॉर्मली निकाल लेंगे, इसके मतलब अगर आप बात करेंगे तो एक एक दिरहम इज इक्वल टू कितना हो गया, एक दिरहम इज इक्वल टू कितना हो गया, 100/5, दैट इज कॉल्ड 20। तो इसके मतलब कि एक दिरहम इज इक्वल टू कितना है, 20 INR। 20 INR मतलब अगर भारत को 100 दिरहम का पेमेंट करना है, उसको, किसको, दुबई को, तो 100 × 2 2000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो क्रॉस रेट क्या होता है, जब when the exchange rate are not available within the two respective currency, then what actually we do, we tries to accumulate the one country जिसका exchange rate and in which the exchange rate are available with the two respective currency, दोनों respective currency के साथ exchange rate available है। पहले उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंट्री की करेंसी का एक्सचेंज रेट उसके साथ देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको हम पेमेंट कर देंगे। समझ गए? $1 इक्वल टू 100 रुपए, $1 इक्वल टू 5 दिरहम। इसके मतलब दिरहम भारत से बड़ा, दिरहम इंडियन करेंसी से बड़ा हो गया ना। जहां $1 में 100 रुपए मिल रहे हैं भाई, एक डॉलर में दिरहम मिल रहे हैं 5, 5/20 या 100/5 दो गया 20। तो एक दिरहम इज इक्वल टू 20 रुपया होगा। इंडियन करेंसी छोटी है दिरहम से, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली आप पेमेंट कर देंगे। 100 का पेमेंट करना है, 200 पेमेंट करना है, 300 पेमेंट करना है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस रेट। विदाउट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज। कोई डाउट हो प्लीज बताइए। क्रॉस रेट समझ गए, जब दो देशों के बीच में क्रॉस रेट नहीं है तो हम ऐसी कंट्री की करेंसी को बीच में इन्वॉल्व करेंगे जिसका एक्सचेंज रेट दोनों के साथ में हो, उसी अकॉर्डिंगली निकाल के हम उसको पेमेंट कर देंगे।
Anybody is having any doubt, please do tell me. ये बहुत बार आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा, आई थिंक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं इसको. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अ वेरी सिंपल मैनर. बहुत सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश किया. बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश किया है. होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. स्टिल यू हैव अ डाउट तो प्लीज डू आस्क मी. अब बात करते हैं कि फैक्टर्स. विशाखा मैम, आप, सीमा, एनीवन प्लीज सब लोग बताइए कोई डाउट हो तो. सौम्या, अंजलि, प्रियंका. अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो पहले इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं. रिलेटिव मार्केट प्राइस, रिलेटिव मार्केट प्राइस, रिलेटिव इनकम लेवल्स, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स एंड सेविंग्स दोनों की बात करें, एंड मार्केट एक्सपेक्टेशंस. मार्केट एक्सपेक्टेशन इसमें होता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स. ठीक है. फ्री फ्लोट होता है, फ्री फ्लोट होता है सौम्या, कि जहां पे पूरा पूरा जो करेंसी की वैल्यू होती है मार्केट फोर्सेस की वजह से होती है. अगर मार्केट में डिमांड आपकी करेंसी की ज्यादा होगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और करेंसी और मार्केट में आपकी करेंसी की वैल्यू डिमांड नहीं है तो करेंसी आपकी क्या रहेगी, डेप्रिशिएट रहेगी. बस यही है. और सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, सरकार इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करता. अब बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज. पहला बोला रिलेटिव मार्केट प्राइस. सीधी सी बात है, जब आपके देश में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, सिंपल समझिए, व्हाई वी डू प्रीफर द चाइनीज गुड्स ओवर ऑन द इंडियन गुड्स? बिकॉज चाइनीज गुड्स आर द चीपर रेट एज कंपेयर टू द इंडियन प्रोडक्ट्स. दैट इज द ओनली रीजन वी आर प्रीफरिंग द चाइनीज गुड्स. अब सीधी सी बात है, जब आपके देश में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा होगा, रिलेटिव मार्केट प्राइस इज मोर देन द in a respective country, then what actually we have to do, we have to be go for the importing of the certain goods from the across the globe. अब जब आप इंपोर्ट कराएंगे तो उस पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कंट्री की करेंसी को दुनिया की उस देश की करेंसी के साथ चेंज कराना पड़ेगा. उससे क्या होगा, आपकी करेंसी की मार्केट में डिमांड घटेगी, सामने वाले करेंसी की डिमांड बढ़ेगी. तो डिमांड बढ़ेगी उसकी, आपकी डिमांड घटेगी तो आपकी करेंसी क्या होगा, डेप्रिशिएट. समझ गए? फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज में रिलेटिव मार्केट प्राइस. और एक्चुअली में यही होता है. ठीक है, एक्चुअली में यही होता है. आपने देखा होगा एक्चुअली में यही होता है कि भारत की करेंसी क्यों डेप्रिशिएट रहती है चाइना से, या सबसे की मैक्सिमम चीजें हम लोग, बहुत सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट भी कराना पड़ता है, उसके चक्कर में विदेशी कंपनी की करेंसीज की मार्केट में डिमांड रहती है. ऐसे रिलेटिव इनकम लेवल, अगर पीपल्स आर मोर रिच इन योर रिस्पेक्टिव कंट्री, आज के टाइम में देखना अमीर और गरीब में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड रिच, and what is the point of difference, how we are differentiating from the poor and how we are differentiating from the rich? Because we are differentiating on the basis of the commodities which we are consuming. Rich people are consuming the luxurious commodities, and the poor peoples are consuming the very normal goods. अगर समझिए, क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, अगर आप बहुत ज्यादा लग्जरियस गुड्स आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, देन व्हाट विल हैपन, आपकी करेंसी मार्केट में डेप्रिशिएट है. यहां पर बात करते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग्स. अगर इसमें क्या है, अगर आपके बैंक में, बैंकिंग सेक्टर्स में ब्याज की दरें ज्यादा होंगी तो दुनिया का सारा देश क्या करेगा, दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट दोज फंड इन योर रिस्पेक्टिव इकोनॉमी. सीधी सी बात है, अगर अमेरिका का आदमी है, चाइना का आदमी है, जापान का आदमी, और लेसोतो तंजानिया की हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज दे हैव देयर ओन करेंसी, फर्स्टली दे हैव टू बी कन्वर्ट देयर करेंसी इन अ रिस्पेक्टिव इंडियन करेंसी. उससे क्या होगा, इंडिया की करेंसी की मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, इंडियन करेंसी गॉट द अप्रिशिएटेड. तो यहां पर भी करेंसी डेप्रिशिएट, यहां पर करेंसी अप्रिशिएट. मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स आपको पता ही है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पॉलिटिकल नया कोई गवर्नमेंट्स बनती है तो करेंसी में अप्रिशिएशन. इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इन्फ्लेशन और ग्रोथ और जीडीपी, इन सब की बात है. सोशल फैक्टर, चेंज इन फैशन, चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न्स.
अगर चेंज इन फैशन होगा, if fashions are changing in a very rapidly manner, in a very frequent manner, and your domestic companies are not able to meet out those demands of your local people, then what actually we have to do? We have to go for importing those items from across the globe. As I've already been told you, if we are importing certain goods from across the globe, then what will happen? Your currency got depreciated. So market expectations may be are more concerned about the political factors. Political में there is a political instability and political intervention. Economical में GDP की बात करेंगे, GDP के डेटा की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, सोशल में चेंज इन फैशन एंड चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न. So this is all about today's lecture and I'm just I hope समझ में आया हो. और I almost 25-26 lecture हो गए. I haven't taken any feedback from you people. So this is the time for giving the feedback. Still you are facing any doubt to understanding my lectures, यार कोई आपको कुछ और दिक्कत लगता है तो you can comment me. Whatever the doubt you have, please do ask me. And you just want certain suggestions, you just want certain give certain recommendations कि क्या what actually क्या करना चाहिए जिससे और इम्प्रूवमेंट हो क्लास में, अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो. आई ट्राई टू सेंड द नोट्स इन एवरी डे. हमने पब्लिक फाइनेंस पढ़ाया पूरा दे दिया, आईबी का नोट्स ऑलमोस्ट आई हैव सेंड टू यू. तो कोई डाउट हो एंड हाउ एक्चुअली हाउ you are liking my videos or not, and you can judge and you can rate. And thank you so much for joining. Anyone is having any doubt, please tell me. कोई डाउट हो प्लीज बताइए. Please do respond me. Anyone is having a doubt? Please everyone reply. कोई doubt हो, कोई दिक्कत हो, and any suggestions you want to be give. And thank you so much Anjali and all the Priyanka and all other person. चलो कोई किसी को कोई डाउट नहीं है.
So once again, thank you so much, Pradeep, Shika, Anjali, Priyanka, Sunita, Visakha, Soumya, Seema ma'am. ठीक है. Once again, thank you so much. But there will not be tomorrow any classes. Saturday को class नहीं होगा. We will meet you probably by Monday at the same time. That is called 9 p.m. Once again, thank you so much for joining.